Today we are going to talk about, or we are gonna experience the virtual lab regarding the BioPack instrument. Now, what is the BioPack instrument? BioPack instrument is basically we are using in our biomedical department to measure the ECG, EMG, and EEG. So, as far our syllabus concerned, we are going to study the process and the disadvantage of measuring ECG, EMG, and if possible EEG. Right? So, please come here. So, this is the setup for hardware BioPack. This is the channel 1, channel 2, 3 and 4. But we need only channel 1 at a time because we are using 3 electrode configuration. One for left hand, one for right hand and one for right leg. Right? For ECG. So this is our hardware and this is the virtual subject. See, the V in plus, V in minus, and in each and every case, the V in and V in minus, V in plus, V in minus, V in plus is different from channel 1 and channel 2. So we have taken channel 1. So all lead configuration is according to that. So clean and abrade the skin, attach 6 electrode on subject, clip leads for channel 1 in lead 1 configuration and channel 2 for lead 3. So we are using only lead 1 configuration for channel 1 for demonstration. Now, so this is our subject, Mr. Suraj NS. He is the assistant professor in biomedical department. He is also teaching the embedded system and all, and he is now helping us as a test subject. So please come here. So this is the lead configuration for channel 1 which we just seen on the computer, right? This one is your right arm, left arm, and this one is your right leg. So all these 3 configuration for lead 1. So we are going to study the ECG pattern, right? So I am just going to start and see. This is your standard ECG waveform. P. This one is the QRS complex. This QRS complex again. So what I was talking in class, R to R interval. So this QRS complex and this QRS complex, the time difference between when we registered the first QRS complex, the second QRS complex, and whatever the time difference in between has elapsed, it is the crucial for detection of any cardiac abnormalities present, right? First, so this is the basic for your how we gonna calibrate, right? And we have right now we are only considering the lead 1 configuration for channel 1. So this is the leads. So the most important thing which we need to understand is that we have to use the electrode on skin with a firm placement. Why the firm placement? Because if we are using the skin without the firm placement, then what is the disadvantage, right? So our heart is here, right? जैसे मैंने आप लोगों को इंथोवेन ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में बताया था, जब हम ECG डिटेक्ट करते हैं तो ECG डिटेक्ट करने का सबसे मेन आइडिया क्या है कि या तो हम अगर हार्ट की एक्टिविटी देखनी है तो हम सीधे हार्ट के सरफेस पे क्यों नहीं देख रहे हैं या फिर वहाँ क्यों नहीं डिटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नॉन इन्वेसिवली अगर हमें किसी पेशेंट की ECG ये चीज़ तो फिजिबल नहीं है कि हम हर बार किसी पेशेंट को कट ओपन करें फिर उसके हार्ट का
डेटा ले, ईसीजी का डेटा ले, फिर हम उसके बेसिस पे हम उसकी डिसीज को बैक ट्रेस करें, राइट। डायग्नोसिस में यही होता है, बट एंड दिस टाइम ऑन इन दिस मेथड वी आर यूजिंग द होल बॉडी एज ए वॉल्यूम कंडक्टर, राइट। सो दिस लीड वन कॉन्फ़िगरेशन विल गिव अस द exact data how your cardiovascular system is actually performing, and you have seen the waveform. The basic difference between the old methods and the new method is that if we are not ensuring the firm placement, then there will be, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 लेयर की आपकी स्किन हो गई, फिर आपके बोन्स हो गए, फिर आपके टिश्यूज हैं, आपके ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं, उसके बाद फिर आपका जो स्किन का आउटर रेजिस्टेंस होता है वो कौन कौन सी चीज़ों से बनता है, आपके हेयर फॉलिकल्स हो गए, आपका स्वेट हो गया, अगर कोई डस्ट पार्टिकल है तो वो। सो जहाँ भी आप इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको उस एरिया को या तो अल्कोहल से क्लीन करना है या फिर किसी एब्रेसिव मटेरियल से, हल्का सा, ज़्यादा आपको स्किन को घिसने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको डेड स्किन रिमूव करनी है और इस फर्म प्लेसमेंट को इंश्योर करना है। अगर आप ये फर्म प्लेसमेंट इंश्योर नहीं करेंगे, से फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रोड लगा हुआ है बट इसका प्लेसमेंट फर्म नहीं है, क्या होगा यहाँ पे, इस एरिया में आपका मोशन आर्टिफैक्ट आने लग जाएगा और वो किस चीज़ को, किस डिसएडवांटेज को प्रमोट करेगा, पहले ही आपका जो बॉडी जो है आप एज ए वॉल्यूम कंडक्टर की तरह उसको ले रहे हैं, आपका जो सोर्स है आपने सोर्स से सिग्नल पिक नहीं किया, आप यहाँ से सिग्नल पिक कर रहे हैं। सो वैसे ही बाकी टिश्यूज से, ब्लड सैंपल से, आपके आरबीसी के थ्रू जो आपका बायोलॉजिकल सिग्नल्स आ रहे हैं वो वैसे ही मिली वोल्ट से और रिड्यूस रहते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर 5 मिली वोल्ट है, सो हमें मिल ही रहा है 4.2, 4.3 एंड इन बेस्ट सिनेरियो 4.5 में भी, राइट। ये 5 जो मिली वोल्ट है ये मैंने एज ए एग्जाम्पल लिया है। अब जब यहाँ पे आप ये प्रॉपर कांटेक्ट इंश्योर नहीं करेंगे, सो मोशन आर्टिफैक्ट क्या करेगा, जो आपको 4.3 या 4.4 जो मैक्स पॉसिबल एफिशिएंट कंडीशन में आ रहा था वो और रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर फर्म प्लेसमेंट नहीं, आपका इलेक्ट्रोड मूव करेगा, प्रॉपर आपके सिग्नल रिसीव नहीं होंगे और ये चीज़ आप लोगों को दिखाई देगी यहाँ वेव फॉर्म में। सर एक बार ये वेव फॉर्म दिखा दीजिए, राइट। अब ये वेव फॉर्म देख लीजिए। अब सर ये इलेक्ट्रोड को हल्का सा इसको मूव होने दीजिए, हल्का सा, ठीक है सर। नाउ हियर इज द नॉन फर्म प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड। अब इसके बाद जब हम कैलिब्रेशन करेंगे, सो उस कैलिब्रेशन के रिजल्ट को प्रीवियस कैलिब्रेशन के रिजल्ट से आपको विजुअली कंपेयर करना है कि चेंजेस कहाँ होंगे। छोड़िए सर, फर्म प्लेसमेंट नहीं रखना है उसको। Now you can see the difference. Same electrode configuration, same sample, same patient, everything is same, just because we have not ensured the firm placement of electrode. See your biological data, how much noise is there, right? So whenever we are ensuring the firm placement, we are just reducing the system disadvantage, because when we are using the human body for picking up the biosignals, right? So there are so many disadvantages lie inside the system. क्योंकि आप किसी भी बायोलॉजिकल, अगर आप हार्ट की बात करें तो अगर हार्ट के सिग्नल्स आपको लेने हैं, अगर आपको ईसीजी कैप्चर करनी है, हार्ट की एक्टिविटी कैप्चर करनी है, तो आप हार्ट के सरफेस पे नहीं रख सकते उसे, राइट। ना ही आप पेशेंट को हर बार ईसीजी लेने के लिए आप कट ओपन कर सकते हो। सो आपके पास कुछ ही मेथड्स बच जाते हैं आपके हार्ट की एक्टिविटी को ट्रेस करने के, जो आपका लीड 1 कॉन्फ़िगरेशन, लीड 2 एंड लीड 3, राइट। अब यहाँ पे अगर आपका मोशन आर्टिफैक्ट भी आ जाएगा, इतने सारे डिसएडवांटेजेस के अलावा अगर मोशन आर्टिफैक्ट भी आ जाएंगे, आपका जो हार्ट तो है ठीक से काम कर रहा है बट आपका सिग्नल रिसीव नहीं होगा। इससे डिसएडवांटेज क्या होगा, जब भी आप डायग्नोसिस का पूरा एक प्रोसीजर देखते हैं, डायग्नोसिस के प्रोसीजर में क्या होता है, हर एक बायोलॉजिकल सिस्टम, हर एक बायोलॉजिकल काउंटर पार्ट आपका
सपोज टू उसके बेस्ट एफिशिएंट वे में काम करते हुए आपको डिटेक्ट होना चाहिए। अगर इन बिटवीन कोई भी कम्युनिकेशन गैप या ट्रांसमिशन गैप आता है या इंटरफेस में कोई आपका मोशन आर्टिफैक्ट आ जाए या कोई डिसएडवांटेज आ जाए तो उसके कारण ऐसे सिग्नल आपको मिलेंगे। जो प्रीवियस सिग्नल और इस सिग्नल में विजुअली कितना डिफरेंस, आप ये चीज़ को क्लियर देख सकते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, सब्जेक्ट भी वैसे ही है, सब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट है। हमने सिर्फ जो इलेक्ट्रोड का जो प्लेसमेंट था यहाँ पे, जो फर्म प्लेसमेंट था, वो एस्पेक्ट हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया। सो उससे आउटपुट देख लीजिए कितना चेंज आता है, राइट।